काली पूजा और दिवाली के मौका पर कलकत्ता एहसास फाउंडेशन और रविंद्र सरानी ट्रेडर एसोसिएशन की जानिब से बड़ा बाज़ार के आर्मेनियन स्ट्रीट में आग पर काबू पाने के सिलसिले में एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें कलकत्ता सेंट्रल एवेन्यू फायर ब्रिगेड की पूरी टीम वहां मौजूद थी। आग लगने से कैसे बचा जाए इस सिलसिले में वहां मौजूद लोगों को तरबियत दी गई। आग लगने पर घबराए बगैर आग को कैसे काबू करें इस सिलसिले में प्रैक्टिकल जानकारी दी गई। फायर ब्रिगेड वालों ने कई बार आग लगाकर उसे बुझाने के अमल को दिखाया। वहां मौजूद लोगों को इस अमल को करने को भी कहा। इस मौका पर एहसास फाउंडेशन और रविंद्र सरानी ट्रेडर्स एसोसिएशन के सभी अहदेदारान और मेंबरान मौजूद थे। इस प्रोग्राम में इलाके के एमएलए विवेक गुप्ता, बोरो की चेयरपर्सन रेहाना खातून, काउंसलर महेश शर्मा वगैरह भी मौजूद थे। एहसास फाउंडेशन की तरफ से अदारा के सदर सेक्रेटरी मोहम्मद हाशिम, मोहम्मद जमाल साहबान वगैरह मौजूद थे। श्री अशोक ओझा, मिराज खान के अलावा अशफाक खान, शोएब हुसैन, अशफाक अहमद, परवेज़ आलम वगैरह भी मौजूद थे। परवेज़ आलम साहब एहसास फाउंडेशन के मीडिया इंचार्ज हैं और उन्होंने इस प्रोग्राम के बारे में काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। प्रोग्राम के अख्ताम तक वो वहाँ मौजूद थे और ये सारी जानकारी उन्होंने ही दी। आइए सुनते हैं, इस मौके पर हमारी बातचीत रेहाना खातून वगैरह से हुई। आइए सुनते हैं उन लोगों ने क्या कहा इस बारे में। প্রথমেই আমরা পশ্চিমবঙ্গ দমকল বাহিনী অগ্নি নির্বাপন দপ্তরের পক্ষ থেকে এখানে যারা অর্গানাইজার কলকাতা এসএস ফাউন্ডেশন আর রবীন্দ্র সরণি ট্রেডার্স অ্যাসোসিয়েশন, এনাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তৎসহ এত অঞ্চলে যারা সুনাগরিক আছেন তাদেরকে আমরা আমাদের দপ্তরের পক্ষ থেকে আমরা ধন্যবাদ দিচ্ছি যে এরকম একটা প্রোগ্রাম করার জন্য। কারণ সামনে দেওয়ালি আছে, কালী পুজো, দেওয়ালি, ছট পুজো, আলো বাজি এগুলো থাকবে। তার সঙ্গে সঙ্গে এই অঞ্চলটা বড়বাজার এরিয়া, এই অঞ্চলে কোনো অগ্নিজনিত দুর্ঘটনা যদি ঘটে আমাদের দপ্তর সবসময় আমরা এদের পাশে আছি এবং থাকবো, এবং আমরা এদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে আমাদের দপ্তর এবং এখানকার যারা অর্গানাইজার আছে তারা আমাদের সঙ্গে সব সময় যত হেল্প করেন এরা। আমরা আজকে যেটা এখানে এসেছি মূলত যে ফায়ার প্রিভেনশন এবং প্রোটেকশন, কীভাবে আগুন লাগলে কীভাবে ফায়ারটাকে প্রিভেন্ট করা যায় এবং ফায়ারটাকে কীভাবে প্রোটেকশন করা যায়, সেইগুলো আমরা আজকের এখানে দেখাবো। এবং সর্বোপরি আমরা প্রত্যেকেই বাড়িতে গ্যাস দিয়ে রান্না করে, বর্তমান সমাজে গ্যাসে আগুন লাগলে বিশেষত গ্যাসে রান্না করে মহিলারা, এবং গ্যাসে আগুন লাগলে কি কি করণীয় এবং কি কি করবে সেটা আমরা এখানে লাইভ ডেমনস্ট্রেশন দেখাবে আমাদের ছেলেরা। আশা করি আপনারাও দেখবেন, এটা আপনাদের নলেজে আসবে। হাউ টু ফায়ার প্রিভেন্ট, কীভাবে আমরা ফায়ারটাকে প্রিভেন্ট করি। প্রোটেকশানটা তো পরে, আগে প্রিভেন্ট করতে হবে। কারণ এই সমস্ত অঞ্চল, এখানে ব্যবসায়িক জায়গা, এখানে প্রচুর গোডাউন, প্রচুর ব্যবসা হয়। যদি আগুন লাগে ফায়ার ব্রিগেড আসার আগে এনারা যদি আগুনটাকে প্রাথমিক অবস্থায় যদি নিভিয়ে যেতে পারে, আগুনটা ডিভাস্টেটিং হবে না, তার মধ্যেই ফায়ার ব্রিগেড চলে যাবে। কারণ আমাদেরকে আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, আপনারা পশ্চিমবাংলার সুনাগরিক এবং আপনারা সমাজের মিডিয়া, আপনাদের মারফতই সমাজ সব কিছু জানতে পারে। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন কলকাতা শহরের যে রাস্তাঘাট যেভাবে জ্যামজট আছে সেটাকে কভার করে আমাদের আসতে হয়। আপনারা এটুকু জানবেন যে ফায়ার ব্রিগেড কখনো কল করার পরে ফায়ার ব্রিগেড কিন্তু আমাদের নিয়মেই আছে 30 সেকেন্ডের মধ্যে আমাদের স্টেশন লেফট করতে হয়। আমরা যা পড়ি জ্যামে আটকে গিয়ে আমাদের যতটুকু আসতে সময় লাগে, ফায়ার ব্রিগেড কিন্তু অযথা দেরি করে না। কিন্তু আগুন কখনো থেমে থাকে না। আগুন যদি লাগে, আগুন লাগলে ফায়ার ব্রিগেড আসার আগে যে করণীয়, যে প্রাথমিক কাজ, সেটা যদি আমাদের যারা নাগরিক সমাজ আছেন তারা যদি সেইটুকু কাজ করে দিতে পারেন, তাহলে আগুনটা মানুষের সম্পত্তি, মানুষের জীবনহানি থেকে, সমস্ত কিছু থেকে রক্ষা পাবে।
এই বলে আমি আপনাদেরকে প্রত্যেককে এতদ অঞ্চলের সমস্ত অর্গানাইজার সহ সাধারণ মানুষকে আমাদের দপ্তরের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার আজকে যে অ্যাওয়ারনেস করানো হলো ফায়ার কি বলবো सबसे पहले तो मैं रविंद्र सरानी ट्रेड एसोसिएशन को और एहसास फाउंडेशन को मुबारकबाद देती हूँ कि जब भी कोई त्यौहार इस तरह का आता है, जैसे दीपावली है, छठ पूजा है, तो इस तरह से लोगों को बेदार करने के लिए लोग अपनी हिफाजत खुद करें, इसको लेकर के एक फ़िक्रमंदी के साथ ये इदारा जो है एक प्रोग्राम करती है। यहाँ पर हमारे दमकल दफ्तर के तमाम ऑफिसर हमारे यहाँ सेंट्रल रेवेन्यू से आए हुए हैं, तमाम कुछ शहरी भाई हमारे यहाँ हैं जो अपना मैसेज घर घर तक पहुँचाएंगे कि जो खुशी है ये ज़िंदगी से बढ़ कर के नहीं है। ऊपर वाले से तो हम लोगों की प्रार्थना और दुआ है कि ऊपर वाला कहीं किसी को हादसा में ना डाले, कोई हादसा ना हो, लेकिन फिर भी खबरदार करना और ख़बरदार रहना ये दोनों इंसानों की ज़िम्मेदारी में आती है। इसलिए ये ज़िम्मेदारी को घर घर पैगाम बना करके पहुँचाना है कि बच्चों के हाथ में कभी कोई आतिशबाजी इस तरह की ना दें जिससे उनके जिस्म को कहीं नुकसान पहुँचे, आपकी खुशी को कहीं ठेस ना पहुँचे। इस तरह से आप लोगों को ये फ़िक्रमंदी के साथ ये एहसास रखना पड़ेगा। इसी चीज़ को लेकर के आज यहाँ पर एक प्रोग्राम किया गया है लोगों को मैसेज देने के लिए। पटाखों पर पाबंदी तो आज ही पेपर में हम लोगों ने देखा है कि एक ग्रीन जो आतिशबाजी छोटी सी है उसको सिर्फ परमिशन दिया जाएगा, बाकी और सब पर किंतु कानून नाफिज किया जाएगा, क्योंकि इससे ज़िंदगी को ख़तरा लाहक हो सकता है। तो इस तरह की आतिशबाजी को घर में ना लाया जाए, इसके लिए बड़े सख्ती से खबरदारी की गई है। तो हम भी यही आवाम तक हम लोग पहुँचाएँगे आप लोग के ज़रिए, क्योंकि हम लोग अगर समाज की क़यादत करते हैं तो हम लोगों की क़यादत आप सब करते हैं, इसलिए आप लोगों को भी हम लोग सैल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं। तो आप लोग जो है आवाज़ बन कर के लोगों तक पहुंचते हैं, लोगों तक ये खबर ज़रूर पहुंचाएं कि इस तरह से आप लोग भी परहेज़ करें कि कोई पटाखा इस तरह का ना लाएं कि घर में कोई नुकसान हो। दुकानदार अगर पटाखा का दुकान लगाता है तो उसके लिए आप लोग क्या एक्शन लेने वाले? देखिए वो पुलिस उसके लिए एकदम चौकन्ना रहे। थाना है वो आकर के दुकानों को बंद करती है, हटाती है, जो अपना काम है सरकार के अंदर और अगर कभी कोई इस तरह से कोई करता उसे निपटा जाएगा। जी शुक्रिया। सबसे पहले तो नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। 2 दिन बाद दिवाली है। कोलकाता एहसास फाउंडेशन और रविंद्र सरानी ट्रेड एसोसिएशन की जानिब से मैं हम दोनों भाई बहन को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं पेश करता हूँ। 2 दिन बाद दिवाली, काली पूजा और पश्चिम बंगाल का एक ऐसा प्रोग्राम है ये काली पूजा और दिवाली के बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें हमारे घर में बच्चियाँ पटाखा का इस्तेमाल करती हैं। मैं यही कहूँगा कि दिवाली मनाइए, अच्छे से मनाइए, सेफ रहिए। और सरकार जो आपको पाबंदियाँ लगाती है कि इस तरह के पटाखा फोड़ने से नुकसान हमारे आबो हवा पे पड़ती है, हमारे घर को नुकसान होता है, हमारे इलाका को नुकसान होता है, इस तरह के पटाखा से आप परहेज करें। जो हमारी सरकार आपको बताती है कि इस तरह के पटाखा को आप इस्तेमाल करिए, आप सबसे गुजारिश है कि उसी तरह के पटाखा को इस्तेमाल करके अपनी खुशियाँ को मनाइए। हम अगर सहयोग करेंगे, हमारे इलाका के लोग सहयोग करेंगे तो हम अपने दिवाली और काली पूजा को बहुत अच्छी तरह से मना सकते हैं। इसी मौका को देखते हुए कोलकाता एहसास फाउंडेशन और रविंद्र सरानी एसोसिएशन के तमाम मेंबरात ने मिलकर ये फैसला लिया कि दिवाली से पहले हम एक ऐसा प्रोग्राम करें कि लोगों को हम जागरूक कर सकें। আচ্ছা বলছি বড় বাজারের মতো এত জনবহুল জায়গা, এখানে এই অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পটা কতটা কার্যকরী? देखिए, हम बचपन से बड़ा बाजार में जन्म हुआ और इसी बड़ा बाजार में बड़ा हुआ। अब माननीय ममता बनर्जी के शासनकाल में फायर ब्रिगेड जिस तरह काम कर रहा है वो आप सबको मालूम है। और ये जागरूकता अभियान जो फायर ब्रिगेड ने चालू किया है माननीय ममता बनर्जी सरकार के नेतृत्व में, ये एक तरह का समाज को प्रेरणा देने का काम है। और हमारी चेयरमैन पर्सन ने कहा था कि आग जब लगती है
तो जो आदमी फंसा हुआ होता है वो उसमें से निकलने के लिए साहस करता है। लेकिन उसी तरह फायर ब्रिगेड भी चाहता है जो आग में फंसे हुए लोगों को किस तरह अपनी जान को खतरे में डालकर उनको बचाते हैं। ये मान्य पूरे बंगाल में, पूरे भारतवर्ष में फायर ब्रिगेड का जो काम है वो हमारे बंगाल में ही है। क्या बात दिते चाहिए? पर्व है, दिवाली का पर्व है, रोशनी का पर्व है। इस तरह बहुत दुर्घटना हो जाती है। उस दुर्घटना से बचने के लिए हमारी एहसास फाउंडेशन और रविंद्र सरानी ट्रेड एसोसिएशन ने जो एक शिविर लगाया है, आदमी को एक आग से बचने का किस तरह फायर ब्रिगेड दिखाएगी, वीडियो हूँ आपको। उससे समाज को एक प्रेरणा मिलना चाहिए, एक जागरूकता और साहस आना चाहिए कि हम आग का सामना फायर ब्रिगेड नहीं आम लोग भी करते हैं। और यहाँ पर आपने देखा होगा आज भी कोई आग की घटना हुई है उसमें स्थानीय लोग बड़े बढ़ चढ़ के इसमें सहयोग करते हैं, ये आपको देखने को मिलता है। आग की दुर्घटना तो ज़्यादातर पटाखे से होती है, तो क्या आप लोग अपने एरिया से पटाखों को बंद करने की कोशिश में लगे हुए हैं? देखिए, पटाखा बंद करना हमारे हाथ में नहीं है, ये तो हमारे सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है। और त्यौहार खुशियों का होता है, रोशनी का होता है, पटाखों का नहीं होता। जहाँ आशावादी होती है, आवाज़बाजी होती है, विरोध होती है, वहाँ आवाज़ें होती है। ये रोशनी और खुशी का माहौल है। यहाँ आशीर्वादी का दरकार नहीं है, आवाज़ों का दरकार नहीं है, यहाँ आपसी प्रेम और रोशनी का दरकार है। क्या कहना चाहेंगे आप जिस तरीके से यहाँ पर प्रोग्राम किया जा रहा है फायर ब्रिगेड? देखिए, दिवाली दीपों का पर्व है, दीपावली का संबंधी विषय है दीप दिवाली, तो दियों का रोशनाई का पर्व है। और रोशनाई के पर्व में अक्सर देखा गया है काली पूजा दीपावली के समय में दुर्घटना की शिकायतें बढ़ जाती हैं। उसमें एहसास फाउंडेशन और रविंद्र सरानी ट्रेडर एसोसिएशन जनरली देखा गया है कि व्यापारी लोग को बोला जाता है कि व्यापारी लोग केवल व्यापार करते हैं और रुपया कमा के चले जाते हैं। ऐसा व्यापारी संगठन जो लोगों को अवेयरनेस कर रहा है, लोगों में जागरूकता बढ़ाने की चेष्टा कर रहा है, हम लोग तहे दिल से रविंद्र सरानी ट्रेडर एसोसिएशन और एहसास फाउंडेशन को धन्यवाद देना चाहते हैं कि लोगों के बीच में जागरूक ला रहे हैं। क्योंकि जागरूकता से ही कोई चीज़ को काटा जा सकता है। कोई भी चीज़ एक दिन में शुरू नहीं होती और एक दिन में बंद नहीं होती। आस्ते आस्ते जैसे जैसे जागरूकता आएगी वैसे वैसे लोगों में जो ये खामियां ये दूर होगी। और फायर ब्रिगेड जिस तरीके से लोगों को यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा है, इससे हमारे इलाके के नौजवान सक्षम होंगे, वो समझ सकेंगे कि आग में कैसे काम किया जाता है। और भगवान ना करे यदि कभी कुछ ऐसी घटना होती है तो उस पर हम लोग बढ़ चढ़ कर काम। मेरा नाम अशोक गुजर, मैं वार्ड।